बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आज आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊँगा। ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या स्टेप्स है और किस तरीके से होते हैं। तो बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, उसकी ज़रा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। So before starting the topic, we are having metabolic pathways inside our body. Glycolysis is one of the metabolic pathways. Similarly, Krebs cycle and electron transport chain, these are all the metabolic pathways which are present, which are the reactions, a series of reactions which are occurring in our body. Now metabolic pathways हमारे पास दो तरह के होते हैं। Either it is catabolic pathways or it is anabolic pathways. अब catabolic जो है, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्जर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, इनकी ब्रेक डाउन होती है और आपके बॉडी के अंदर वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली इस एनर्जी प्रोविजन की वजह से इस कैटाबॉलिक पाथवे को हम एक्सर्गोनिक इन नेचर भी कह सकते हैं, because they are providing energy to the body and in turn this energy is used by the body in order to do some work. Similarly, anabolic pathways. Anabolic is basically the synthesis process and catabolic is the destructive process. So अगर मैं इसको इस तरह से कह दूं कि destruction and construction, ये भी ठीक है। constructive pathway and destructive pathway, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। कैटाबॉलिक को हम डिस्ट्रक्टिव पाथवे भी कहते हैं, एनाबॉलिक को हम कंस्ट्रक्टिव पाथवेज भी कहते हैं। सो सिमिलरली इसके डेफिनेशन को अगर हम देख लें, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बाय प्लांट्स। अगर मैं आपको बता दूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, plants are capable of producing glucose. Now this formation of glucose by plants, that is basically anabolic pathway. Similarly इसी तरह के steps, कुछ reactions हमारे body के अंदर भी होते हैं, human beings के अंदर, जिसमें कुछ तो break down होगी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें बन भी जाती हैं। and जो चीज़ें बनती है, these pathways are basically called as anabolic pathways and they are basically intergonic in nature. Now moving towards the next portion, what are the characteristics of metabolism? So metabolism is basically, metabolic pathways are mostly irreversible. They cannot be reversed. Once glucose is formed, it is formed. Now this glucose is destructed, this glucose is broken down into further ATPs or ADPs, which are providing energy in the form of ATPs. Now every metabolic pathway has a committed first step. All metabolic pathways are regulated. Regulated means कि जितने भी metabolic pathways है body के अंदर, they are basically working under certain rules, certain conditions. हर step के लिए कुछ enzyme चाहिए होता है। Now this enzyme is basically acting as biological catalyst, and this biological catalyst regulates, it speeds the reaction occurring in the body. So इसीलिए हम इसको कहते हैं they are regulated. Metabolic pathways in eukaryotic cells, they occur in specific cellular locations. ठीक है, eukaryotic cells के अंदर, human beings के अंदर या plants के अंदर जो cells हैं, उनके सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज है। क्योंकि हमने अभी डिस्कस नहीं किए, वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर हम की स्पेसिफिक साइकिल की बात कर लें, कोई स्पेसिफिक चेन की बात कर लें, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर लें, नाउ दैट रिएक्शन इज बेसिकली अकरिंग इन सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन। अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात कर लूँ, से दे आर अकरिंग इन द साइटोसोल। तो आइए अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक मैंने आपको बताया जैसे कि स्टार्ट में, कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलिसिस विच इज़ अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन।
respiration basically occurs in the body in three different ways. One is glycolysis, another is Krebs cycle, and the third one is electron transport chain. तो glycolysis के बारे में आज हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं. Now glycolysis is basically the combination of two words. दोनों वर्ड जो है these are Greek words, and दोनों Greek words में से the first one is glycase, जिसका मतलब है sweet. दूसरा है lysis. Lysis means break down, तोड़ना, splitting, destruction. ठीक है. तो sweet breakdown, it means that whatever is present in the body and that is sweet in taste are carbohydrates. So basically the destruction, the splitting, the breakdown of glucose or carbohydrates inside the body is called as glycolysis. Glycolysis को हम दूसरा नाम भी देते हैं because there were two scientists, one is Emden and second one Meyerhoff. इन दोनों ने इसका ग्लाइकोलिसिस का आइडिया दिया था, इसलिए इनके साइंटिस्ट के नाम की वजह से इनको एमडन मयरहॉफ पार्नास पाथवे भी कहते हैं, जिसको शॉर्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं EMP पाथवे से. ठीक है. तो ग्लाइकोलिसिस शुरू कैसे होती है? बेसिकली ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम्स catalyzed reactions that converts glucose into pyruvate with simultaneous production of ATP. In this oxidative process, 1 mole of glucose is partially oxidized to 2 moles of pyruvate. It means the starting product of glycolysis is glucose and the end product of this glycolysis is basically pyruvate. अब मैं end पे जाके आपको थोड़ा बताऊंगा कि this process basically it occurs in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. अगर presence of oxygen में हो, then glucose is directly converted into pyruvate molecules. But if this process is occurring in the absence of oxygen or it is the limited supply of oxygen is there, then glucose can be converted into lactic acid inside the body. और आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज के दौरान आपके बॉडी में मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, फटीग आपको फील होती है. दैट फटीग इज बेसिकली ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन विच ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वो बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता और इसीलिए आपको फटीग फील होती है. नाउ दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ ए सेल. नाउ दिस इज द मेन एरिया विच सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है. दिस यूनिक पाथवे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, इट अकर्स एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. इट आल्सो इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट. ये मैंने वो बात आपको कर दी कि जब आप एक्सरसाइज के दौरान देखते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है और उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है. नाउ द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज ओनली इन द मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेगुलेशन एंड इन द सबसीक्वेंट मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट फॉर्म्ड. मतलब डिपेंड करता है कि जो स्पीशी कौन सा है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, चिंपैंजी है, कौन सा है. तो स्पीशी से लेके स्पीशी दूसरे में हर एक में ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, रेगुलेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है. इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द प्रीलूड टू सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ETC. सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ETC मींस कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये आपको पायरुवेट प्रोवाइड करता है एंड दैट पायरुवेट मॉलिक्यूल दैट इज देन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A is the starting material for the citric acid cycle which is also known as Krebs cycle. और Krebs cycle का जो last product होता है that then goes into the chain of reaction which is called as electron transport chain. ETC हमारे पास क्या चीज़ है? There is electron transport chain और citric acid cycle is basically Krebs cycle. सो ग्लाइकोलिसिस अकेले पूरा नहीं होता. हम मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में कि द respiration process occurs in 3 different ways. First glycolysis, secondly
Krebs cycle or citric acid cycle, and the third one is electron transport chain. और इस complete process में जो ATP provide होते हैं उसको हम count करते हैं. Now glycolysis is the central pathway for glucose catabolism. Again, recall your memory from the starting topic. Catabolic pathway and anabolic pathway means मैं अगर यहाँ पे इसको लिख दूं कि that is the destruction pathway तो ये गलत नहीं होगा. Now glycolysis, ग्लूकोज की अगर हम बात कर लें तो ग्लूकोज जो है बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज होता है, कहाँ पे स्टोर होगा, किस तरह से की आपके बॉडी में, मतलब ग्लूकोज का क्या काम है. सिंपल. नाउ ग्लूकोज इज बेसिकली यूटिलाइज्ड. नंबर 1, अगर हम सिंथेसिस की बात कर ले, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स. स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल वॉल, दैट इज ग्लूकोज जो है सेल वॉल में प्रेजेंट है. किसके फॉर्म में? ये हमारे पास लिपिड्स के साथ भी कंबाइन होता है और लिपिड्स के अलावा ये प्रोटीन्स के साथ भी कंबाइन होता है. हम अगर यहाँ पे इस तरह लिख दें कि दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो इन दोनों से मिलके ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जो स्किन है, जो फीदर्स वगैरह बनते हैं, सेल के सेल वॉल जो बनते हैं, बेसिकली दैट कंटेन ग्लूकोज. सिमिलरली सेकंड जो है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन विया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसमें से हमारे पास ये बनाता है राइबोज 5 फॉस्फेट. सेकेंडली अगर हम स्टोरेज पे चले जाए, सो इन द स्टोरेज इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज. और ये पूरी स्टोरेज होती है बॉडी में. कहाँ पे? These all are present in the form of these inside the liver. Liver is, remember, liver is largest gland in the body. इस largest gland में ये चीज़ें स्टोर होती है. अगला हमारे पास जो ऑक्सीडेशन अगर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हम कर लें, so in this process it is converted into pyruvate molecules. एंड मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. दीज पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू citric acid cycle या Krebs cycle, and after that goes to electron transport chain. Now a series of reactions which are occurring inside the glycolysis. Starting from glucose, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था इस मेटाबॉलिक पाथवेज की ये खुसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. वन glucose is converted into glucose 6 phosphate, but this requires certain enzyme for conversion. In the absence of enzyme, it cannot be converted. Simple. Glucose is converted into glucose 6 phosphate, and this occurs in the presence of hexokinase, जो कि enzyme है. जहाँ पे ASE आ जाए, that ASE is basically the nomenclature of enzymes. इस प्रोसेस में हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल यूज होता है, and that ATP is converted into ADP. Adenosine triphosphate is converted into adenosine diphosphate. Secondly, glucose 6 phosphate convert हो जाता है fructose 6 phosphate में, and that is basically आप कहते हैं isomer है इसका. So this process occur in the presence of phosphohexose isomerase. Glucose is also 6 carbon sugar. Fructose is also 6 carbon sugar. Both can be called as hexoses. So ये 6 phosphate इधर भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जस्ट क्या होता है कि स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज, एंड दे आर बेसिकली आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो इनके लिए जो एंजाइम भी यूज होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम. अब यहाँ पे अगर आप देख लें ये मैग्नीशियम, इस वाले स्टेप में मैंगनीज, यहाँ पे अगले स्टेप्स में अगर आप जाएंगे तो ये सामने आपको नजर आ रहा होगा मैग्नीशियम. These are basically metal ions, and these metal ions are basically these metal ions works as inhibitors. अगर ये इस स्टेप में मौजूद हो तो ये इस स्टेप
इसको रेगुलेशन से बचाता है, इसको स्पीड से बचाता है और ये कमज़ोर कर देता है। लेकिन इसके अपोजिट जो है, ऑन कंट्री टू इट वी आर हैविंग फास्फोहेक्सोजेज, हेक्सोकाइनेजेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेजेज and similarly other enzymes in every step. Every step is regulated by certain enzyme and every step may be inhibited by certain metal ions. Now these metal ions are basically occurring here in these steps and these are occurring as inhibitors. Now fructose 6-phosphate जो है ये in the presence of phosphofructokinase ये convert होता है fructose 1,6 biphosphate या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं या फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगेन हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट दैट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैविंग 3 कार्बन्स। दोनों में 3 कार्बन मौजूद होते हैं और वो दोनों क्या चीज़ है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट में या ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक है, ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब ये दोनों आपस में भी इंटर कन्वर्ट होते हैं बिकॉज दीज बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड्स और ये आपस में एक दूसरे के साथ शफल होते रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अगर हम इसमें देख ले तो आइसोमेरेज एंजाइम इज प्रेजेंट or phosphotriose enzyme is present. In the presence of these enzymes, glyceraldehyde 3-phosphate can be converted into dihydroxyacetone 3-phosphate or dihydroxyacetone 3-phosphate can be converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Now this complete step of reaction in which we are having 5 steps, these are basically called as preparatory phase. Basically glycolysis occurs in 2 different phases. हमने स्टार्ट में बता दिया कि these reactions occurs and these are having 10 steps. अगर हम इन जो मैंने ग्रीन लाइंस के अंदर रख दिया है इनको अगर काउंट कर ले हम तो यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सो स्टेप नंबर 1 यहाँ से ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ से आगे तीसरा हो गया और यहाँ से आगे ये 4th हो गया और इन दोनों का आपस में ट्रांसफर जो है आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, दिस इज स्टेप नंबर 5. So these 5 reactions are basically called as preparatory phase of glycolysis. और जो second phase है यहाँ पे जो right पे reaction आपको नजर आते हैं 5 reaction, these are basically called as payoff phase. ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझ ले फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास पे ऑफ जो फेज है उसमें हमारे पास ट्रायोज फॉस्फेट और डिहाइड्रोजिनेज इनके प्रेजेंस में हमारे पास जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं 1,3 डाई या बिस, इसमें लिख लो डाई की बजाय या डिस इन्होंने लिखा है लेकिन आप इसको कर ले बिस, 1,3 बिस या 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस एक NAD जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू, इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH2 इन द प्रेजेंस ऑफ 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल. अब अगेन दिस 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरेट इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. ठीक है, ये प्रोसेस होता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। और इस प्रोसेस में अगर हम देख ले लेफ्ट पे जाके तो पहले स्टेप में हमारे पास ATP यूज़ हुआ था एंड सिमिलरली अगर हम थर्ड स्टेप पे जाए इसमें हमारे पास ATP यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी ADP कन्वर्ट होगा ATP में, तो ये ATP आपको प्रोड्यूस करके देगा। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है that is then again converted into 2 phosphoglycerate in the presence of phosphoglyceromutase enzyme. ठीक है, similarly 2 phosphoglycerate that is converted into phosphoenol pyruvate और phosphoenol pyruvate के लिए जो एंजाइम है that is enolase enzyme. ठीक है, इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल ये आउट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है इसकी, और एक वाटर मॉलिक्यूल जब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से आउट हो जाए so it is converted into phosphoenol pyruvate enzyme, pyruvate, sorry. Now this phosphoenol pyruvate is converted into simple pyruvate which is
2 मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास। एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम। और अगेन यहाँ पे ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ठीक है। लेफ्ट वाले जो प्रेपरेटरी फेज था इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए, और राइट में जो पे ऑफ फेज है इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमारे पास बन गए, ठीक है। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल हमारे पास ये बने हैं, 1 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सेकेंड इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नाउ दीज रिएक्शन जो राइट पे हमारे पास रिएक्शन है ये वाले, अगर इसको मैं इंसर्कल कर लूँ यहाँ से ऐसे, तो ये जो रिएक्शन है दीज रिएक्शन बेसिकली अकर्स इन 2 स्टेप्स। एक स्टेप में ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपको पायरुवेट मॉलिक्यूल बना के देगा, सेकेंड स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट जो है ये आपको पायरुवेट मॉलिक्यूल बना के देगा। अब अगर आप गौर कर लें तो एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अगर कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो इसमें कितने ATP बन गए। मैं ज़रा इसका कलर चेंज करके आपको दिखाऊं। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल के कन्वर्जन से एक ATP ये बन गया, दूसरा ATP ये बन गया। सिमिलरली अगर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करना चाहें पायरुवेट में तो अगेन उसमें आपके पास 2 ATPs बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इट मीन्स कि एक ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होगी तो वो आपको कितने ATP प्रोवाइड करेगा। एक ATP ये हो गया, एक ये, एक स्टेप में 2 ये हो गए। दोबारा जब 3 कार्बन कंपाउंड अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट तो उसमें 2 फर्दर बनेंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ATPs प्रोवाइडेड आर 4 इन दिस प्रोसेस, जिसमें से 2 हमारे पास दोबारा यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक ATP ये यूज़ हो गया और एक ATP यहाँ पे यूज़ हो गया। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी आपको करके दूँ कि टोटल कंज्यूम कितने हो गए हमारे पास। टोटल कंज्यूम हो गए 2, टोटल फार्म्ड कितने हो गए 4, ठीक है। अब 4 तो बन गए लेकिन 2 उसमें से कंज्यूम हो गए तो बैलेंस कितना बच गया। इट मीन्स कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2। It means a total of 2 ATP molecule are provided। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।